بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ملک ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ اپنی رحم دلی اور عدل و انصاف کی وجہ سے عوام میں بے حد مقبول تھا۔ بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن اس نے شاہی نجومیوں کو دربار میں بلایا اور ان سے اپنے ہاں اولاد ہونے کے بارے میں پوچھا۔ نجومیوں نے حساب کتاب لگا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، آپ کے ذائچے کے مطابق اولاد کی ہلکی سی امید ہے، مگر واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور اسی پریشانی میں جب وہ محل کے اندر پہنچا تو ملکہ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر بولی، خیریت ہے بادشاہ سلامت، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے ملکہ کو ٹالتے ہوئے کہا، نہیں ملکہ بیگم، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ سن کر ملکہ بولی، میرے سرتاج، میں آپ کی بیوی ہوں، اگر میں آپ کی مدد نہیں کروں گی تو پھر کون کرے گا؟ اس پر بادشاہ نے ملکہ کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتاتے ہوئے، بیگم، بات یہ ہے کہ میں اتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہوں، مگر میں سوچتا ہوں کہ اس کا وارث کون ہوگا، جبکہ نجومیوں نے بھی اس بارے میں کوئی واضح اشارہ نہیں دیا، بس ہم اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ سن کر ملکہ بولی، میرے سرتاج، اولاد تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، تو پھر کیوں نہ اسی سے مدد مانگی جائے؟ ہاں، ایسا ہی ٹھیک ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، بادشاہ نے کہا اور اپنی خوابگاہ کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن بادشاہ اور ملکہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ بزرگ نے ان کی بات سن کر فرمایا، بادشاہ سلامت، آپ کے یہاں اولاد ہوگی، مگر وہ زیادہ دن آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ اگر آپ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ ایک ساتھ بولے، ہمیں آپ کی ہر بات منظور ہے، آپ کہیں تو صحیح۔ بزرگ فرمانے لگے، تو ٹھیک ہے، آپ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوگی، مگر اس کے سر پر 3 چمکتے بال ہوں گے۔ جب تک وہ بال شہزادی کے سر پر رہیں گے، اس وقت تک وہ آپ کے پاس رہے گی، اور جس دن تینوں بال شہزادی کے سر پر سے غائب ہو گئے، اسی دن شہزادی آپ سے جدا ہو جائے گی۔ بادشاہ اور ملکہ نے بزرگ کی یہ بات سن کر انہیں دعا کرنے کے لیے کہا اور ہنسی خوشی واپس محل میں آ گئے۔ پھر عرصہ کے بعد بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت لڑکی نے جنم لیا، اور بزرگ کے کہنے کے مطابق اس کے سر پر 3 ہی بال تھے۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کی پیدائش پر بڑے خوش ہوئے۔ ملک میں کئی روز تک چراغاں کیا گیا اور غریبوں کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ بادشاہ نے شہزادی کی حفاظت کے لیے کئی کنیزوں اور سپاہیوں کو مقرر کر دیا تھا، جو ہر وقت شہزادی کے بالوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہزادی بڑی ہوئی گئی اور اس کے بال بھی بڑے اور خوبصورت ہوتے گئے۔ جو بھی شہزادی کے یہ 3 بال دیکھتا، حیرت کے ساتھ ساتھ ان کی تعریف بھی کرتا۔ جب شہزادی نے 14ویں سال میں قدم رکھا تو اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے جگا رہا ہے۔ اس نے جب آنکھیں کھولیں تو اپنی خواگاہ میں بادشاہ سلامت کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، ابا حضور، کیا بات ہے؟ آپ اتنی رات گئے یہاں کیوں آئے ہیں؟ بادشاہ نے شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹی، تم سے ایک چیز لینی تھی، اس لیے خود چلا آیا۔ شہزادی نے کہا، حکم کریں ابا حضور، آپ کو کیا چاہیے؟ بادشاہ کہنے لگا، بیٹی، مجھے تمہارے سر کا ایک بال چاہیے، مگر ابا حضور، آپ تو ان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی انہیں نہ لے جائے، لیکن اب آپ خود۔ شہزادی نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا، ہاں بیٹی، میں مجبور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں کرو گی۔ بادشاہ نے پھر کہا، تو شہزادی نے اپنے سر کا ایک بال بادشاہ کو دے دیا اور خود پھر سو گئی۔ صبح محافظوں نے جب شہزادی کا ایک بال غائب دیکھا تو وہ بے حد پریشان ہوئے اور فوراً بادشاہ کو اطلاع دی۔ اطلاع پا کر بادشاہ فوری شہزادی کے پاس آیا اور اس سے بال کے بارے میں پوچھا تو شہزادی نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ مگر بیٹی، میں تو رات اپنی خوابگاہ سے باہر نہیں نکلا، بادشاہ نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ابا حضور، مجھے یقین ہے کہ میں نے بال آپ کو ہی دیا ہے۔
शहजादी ने कहा, और बादशाह को बुजुर्ग की बात याद आ गई। उसके साथ ही वो सब कुछ समझ गया। फिर तो उसने पहरेदारों को मजीद चौकन्ना कर दिया ताकि बाकी 2 बाल कोई न ले जा सके। इस वाक़ये को कई माह गुजर गए और शहजादी के बाल वैसे ही रहे। इसके बावजूद बादशाह को ये फिक्र लाहक थी कि बुजुर्ग का कहना सच साबित होगा और शहजादी के बकिया 2 बाल भी ज़रूर गायब होंगे। एक दिन इस परेशानी के आलम में बादशाह बुजुर्ग के पास पहुंचा और उन्हें अदब से सलाम करने के बाद बोला, बुजुर्ग बाला, आपकी दुआ की वजह से ही हमारी गोद हरी हुई थी, लेकिन ये कैसी बेइंसाफी है कि ये औलाद हमारी होकर भी हमारी नहीं। इसके लिए कुछ सोचें और इसका हल बताएं। बादशाह की ये बात सुनकर बुजुर्ग बड़े जलाल के साथ बोले, ऐ बादशाह, मैंने तुम्हें पहले ही सच सच बता दिया था और तुमने भी इस बात को कबूल किया था। शायद तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। यह सुनकर बादशाह कांप गया और उसने बुजुर्ग बाबा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बुजुर्ग बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा मतलब तो ये था कि बिछड़ने के बाद शहजादी हमसे मिल सकेगी या नहीं। हाँ, तुम शहजादी से ज़रूर मिलोगे, मगर इसके लिए तुम्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शहजादी का बाल एक खौफनाक जिन लेकर गया है। उससे बाल हासिल कर लोगे तो शहजादी के सर पर ना सिर्फ सारे बाल आ जाएंगे, बल्कि शहजादी भी तुम्हें मिल जाएगी, वरना बाती बालों के गायब होते ही शहजादी पत्थर का बुत बन जाएगी। हाँ, अगर तुम शहजादी की शादी उसी जिन से कर दो तो वो तुम्हें बाल दे सकता है, वरना इसके लिए तुम्हें एक ऐसे नौजवान का इंतखाब करना होगा जिसने जिंदगी में कभी भी झूठ ना बोला हो। ठीक है बुजुर्ग बाबा, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर बादशाह हल की तरफ रवाना हो गया, मगर बादशाह अभी महल के दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि उसे महल में हलचल और अफरा तफरी नजर आई। उसने जल्दी से सूरत हाल के बारे में पूछा तो वजीर आजम ने रोते हुए बताया, बादशाह हुजूर, शहजादी महल के बाग में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते पुराने बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गई। जैसे ही शहजादी और उसकी सहेलियां दरख्त के नीचे पहुंची, दरख्त में से एक तेज किस्म की अजीबोगरीब रोशनी निकली, जिससे शहजादी और उसकी सहेलियां बेहोश हो गईं। अब शहजादी की सहेलियां तो होश में आ गई हैं, लेकिन शहजादी के सर से बाल गायब हैं और वो पत्थर की बन गई है। ये सुनकर बादशाह जल्दी से शाही बाग में उस जगह पहुंचा और शहजादी को वाकई पत्थर का बना देखकर समझ गया कि ये सब उसी जिन की कारस्तानी है। चुनांचे उसी वक्त पूरे मुल्क में ये ऐलान कर दिया गया कि जो शख्स शहजादी के बाल वापस लाएगा उसे आधी सल्तनत देने के अलावा शहजादी से उसकी शादी भी कर दी जाएगी। ये ऐलान सुनकर बहुत से नौजवान अपनी किस्मत आजमाने के लिए गए, मगर कोई भी कामयाब न हो सका। उनमें से कुछ तो नाकाम वापस आ गए और कुछ वही मौत के घाट उतर गए। यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। बादशाह को फिक्र लाहक हो रही थी। एक दिन इसी तरह बादशाह दरबार में उदास बैठा था कि दरबान ने आकर इत्तला दी, बादशाह सलामत, एक नौजवान आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने इजाज़त दे दी। कुछ देर बाद एक खूबसूरत नौजवान बादशाह के सामने आकर अदब से बोला, बादशाह हुजूर, मैं आपकी इजाज़त से शहजादी साहिबा के 3 बाल वापस लाना चाहता हूँ। बादशाह कहने लगा, मगर नौजवान, उसके लिए ये शर्त ज़रूरी है कि उस नौजवान ने भी झूठ न बोला हो। नौजवान ने अदब से झुकते हुए कहा, बादशाह सलामत, मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने ज़िंदगी में मजाक में भी झूठ नहीं बोला। मरहबा मरहबा। बादशाह ने तख्त से उतरकर उस नौजवान को गले से लगाते हुए कहा, ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम कभी भी नाकाम वापस नहीं आओगे। नौजवान ने अपना तेज़ रफ्तार घोड़ा पकड़ा और उसी वक्त अपने सफ़र पर रवाना हो गया। बादशाह, वज़ीर आज़म और दूसरे लोग उसे शहर से बाहर अलविदा कहने आए। शहजादी के बालों की तलाश में नौजवान मंजिलों पर मंजिलें तय करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उसने काफ़ी फासले तय कर लिया था। एक दिन वो ऐसे सहरा में से गुजर रहा था जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, जबकि उसके पास भी पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका था और उसे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, शिद्दत से कि उसे एक कुआं नजर आया।
वो फौरन कुएं के पास पहुंचा, लेकिन उसे ये देखकर बड़ी मायूसी हुई कि कुआं बिल्कुल खुश्क था। वो मायूस होकर वापस होने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा मेरी मदद करो। ये आवाज सुनकर नौजवान ने उधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर न आया। इतने में वो आवाज दोबारा सुनाई दी। अब के नौजवान ने आवाज की सिमत का अंदाजा लगाकर कुएं में झांका तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्योंकि अब न सिर्फ ये कि कुएं में पानी था, बल्कि उसमें एक बुजुर्ग भी मौजूद थे जो कि मदद के लिए पुकार रहे थे। नौजवान ने फौरन कुएं में छलांग निगारी और बुजुर्ग को बाहर निकाल लाया। जूं ही बुजुर्ग कुएं से बाहर आए, सहरा फौरन सरसब्ज इलाके में बदल गया। नौजवान ये देखकर हैरान हुआ और बोला, बाबा ये सब क्या है? नौजवान का ये सवाल सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा ये कुछ अरसा पहले की बात है कि एक खौफनाक जिन मेरा दुश्मन बन गया। वो मुझे इबादत करने और दूसरों की मदद करने से रोकता था, मगर मैं इसके बावजूद ना तो इबादत से बाज आता और ना ही दूसरों की मदद करना छोड़ी। मैं उस जिन से बचने के लिए हर रात को अपने गिर्द हिसार बांध लेता ताकि उसके शर से महफूज रह सकूं। मगर एक रात में ये सब करना भूल गया तो जिन को मौका मिल गया और उसने मुझे उस कुएं में कैद कर दिया और साथ ही उस जगह को जादू के जोर से सहरा में बदल दिया। और ये आज 22 साल बाद तुम्हारे जरिए हुआ है, जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लगता है कि तुम किसी लंबे सफर पर निकले हुए हो। नौजवान ने कहा, बाबा मेरा नाम अयाज है और मैं बहुत लंबे सफर पर हूँ, लेकिन अभी तक मंजिल नहीं मिली। अयाज की इस बात पर बुजुर्ग बोले, कोई बात नहीं अयाज, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। इतनी देर में बुजुर्ग अयाज को लेकर एक बड़ी सी झोंपड़ी में पहुंच चुके थे। वो अयाज से कहने लगे, अब तुम आराम से सो जाओ बेटा, सुबह बात करेंगे। नौजवान भी काफी थक चुका था, इसलिए वो खाना खाकर वहीं सो गया। सुबह उठकर अयाज ने हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया और फिर बुजुर्ग से इजाजत चाही। बुजुर्ग ने उसे एक छड़ी, एक चटाई और एक मोती देते हुए कहा, ये चीजें ले जाओ बेटा, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी। ये छड़ी तुम्हें तुम्हारी मंजिल की समत बताएगी और ज़रूरत के वक्त जब तुम इसे हवा में लहराओगे तो ये अपना काम शुरू कर देगी, जबकि ये मोती तुम्हें हर किस्म के जादू से महफूज रखेगा और ये चटाई तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देगी। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर अयाज छड़ी और मोती लेकर चटाई पर बैठ गया और चटाई आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी। अयाज के हाथ में पकड़ी छड़ी एक समत को सीधी हो गई और चटाई उस तरफ को परवास करने लगी। अयाज चटाई पर बैठा न जाने कितनी देर तक फिजा में सफर करता रहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि चटाई जमीन की तरफ जा रही है और फिर कुछ देर बाद ही चटाई जमीन पर उतर आई। अयाज ने सामने देखा तो उसे कुआं नजर आया। वो कुआं देखकर हैरान रह गया कि कहीं ये कुआं ही तो उसकी मंजिल नहीं। वो काफी देर सोचता रहा, फिर उसे बुजुर्ग बाबा की छड़ी का ख्याल आया। उसने छड़ी को सीधा किया तो वो ये देखकर मजीद हैरान रह गया कि छड़ी का रुख भी कुएं की तरफ था। चुनाचे उसने मोती को मुंह में रखा और अल्लाह का नाम लेकर कुएं में कूद गया। कुछ लम्हों बाद ही वो पानी ही पानी में नीचे की तरफ जा रहा था। कुछ फासले तय करने के बाद उसके पांव जमीन से टकराए। उसने देखा कि वो वाकई जमीन पर खड़ा था और उसके इर्द गिर्द खूबसूरत पहाड़ थे। वो उन्हें देखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक तेज आग का शोला उसके करीब आया और फिर एकदम उकाब बनकर उस पर झपटा। मगर जो ही उकाब ने उसे छुआ, शोला बनकर राख हो गया। अयाज ये देखकर समझ गया कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। वो आगे ही आगे बढ़ता गया। अभी उसने थोड़ा सा फासला तय किया था कि उसे अजीब व गरीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो उनकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ता गया तो वो आवाज़ें ख़त्म हो गईं और एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रहा था, ए नौजवान, क्यों अपनी जान का दुश्मन बन रहा है? अपनी जवानी पर रहम खा और यहाँ से चला जा, वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। अयाज गरज कर बोला, बुजुर्ग छुप कर वार क्यों करते हो? अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो और ये बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं शहजादी के बाल हासिल किए बगैर नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अभी अयाज ने अपनी बात खत्म ही की थी कि जमीन जोर जोर से हिलने लगी, जैसे जलजला आ गया हो। अयाज ने देखा तो उसे अपने सामने खौफनाक देव खड़ा नजर आया। ये देव बल में वही जिन था जो कि शहजादी के बाल लेकर आया था। उसने खूनी निगाहों से अयाज को घूरते हुए कहा, ए बदनसीब नौजवान, तूने मेरी बात नहीं मानी।
इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। देओ गुस्से में अयाज पर हमला करने लगा, मगर जादुई छड़ी ने हर बार उसके हाथ और पांव धुंध की तरह गायब कर दिए। अयाज हैरान था कि देओ फिर भी जिंदा है। अचानक उसकी नजर करीब बैठी एक डरी हुई बंदरिया पर पड़ी। अयाज समझ गया कि देव की जान इसी में है। उसने जादुई मोती बंदरिया के पास रखा तो वो चमकने लगा। रोशनी ने बंदरिया पर से जादू तोड़ दिया और देव धुएं की तरह गायब हो गया। अयाज ने फौरन शहजादी के तीनों बाल उठाए और चटाई पर बैठकर ईरान पहुंच गया। शहजादी के सर पर वो बाल रखते ही वो बिल्कुल ठीक हो गई। दूसरे दिन शहजादी की शादी अयाज से कर दी गई और जब बादशाह ने उसे आधी सल्तनत देना चाही तो अयाज ने ये कहकर सल्तनत लेने से इनकार कर दिया कि वो हमसाया मुल्क का शहजादा अयाज है। ये सुनकर सब बड़े खुश हुए और हंसी खुशी रहने लगे।